بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ بڑی خوفناک خبریں ہیں، 4 آج ہمارے پاس آپ کے لیے ایکسکلوسیو، ایک خوشخبری بھی ہے اور کچھ پیش گوئیاں۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں نے خبردار کیا ہے کہ جو غزہ میں حماس اسرائیل جنگ ہے، اس کا دائرہ اگلے چند ہفتوں کے دوران مزید پھیل جائے گا اور پورے یورپ سے، امریکہ سے صلیبی جنگوں کے انداز میں جو فوجی ہیں وہ بھرتی کر کے لائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 15-20 دنوں سے فرانس اور امریکہ سمیت، فرانس، امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک سے سینکڑوں فوجی جو صلیبی جنگوں کے انداز میں بھرتی ہو کر اسرائیل پہنچ بھی چکے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں، لیکن میڈیا یہ بات نہیں بتا رہا۔ کچھ اخبارات نے، مغربی اخبارات نے خبریں شائع کی ہیں، لیکن انہوں نے ان فوجیوں کو کرائے کے فوجی لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ یہ جو مذہبی بنیادوں پر بھرتی کر کے لائے گئے ہیں۔ لیکن بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے وہاں پر جنگی بخار پیدا کر دیا گیا ہے، اور لیکن میڈیا پر یہ بات شو نہیں کی جا رہی تاکہ اس کے رد عمل میں عالم اسلام میں کوئی جہادی لہر پیدا نہ ہو جائے۔ بڑی خوفناک خبر آئی ہے ناظرین۔ یوکرین میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن یوکرین میں چونکہ کوئی ایسا مقدس مقام نہیں تھا، لیکن جو یروشلم ہے، بیت المقدس ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا مسیحیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے۔ اس لیے مذہبی بنیادوں پر جنگی بخار پیدا ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے اسرائیل کو کم و بیش 1.5 لاکھ فوجیوں کی مدد فراہم کی جائے گی، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا، اگلے چند سال کے دوران۔ اور جو اسرائیل کی اپنی فوج ہے اس کو محفوظ فوج کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ جو فرنٹ لائن پر لڑنے والے لوگ ہوں گے وہ یورپ سے آئیں گے اور امریکہ سے آئیں گے، اور صورتحال بڑی تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ بابا جی نے یہ خبر بھی دی ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران امریکہ کی طرف سے جو ایشیا کے اور افریقہ کے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ مزید دھمکی آمیز سلوک شروع ہو جائے گا۔ بڑی خوفناک خبر ہے ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے کہ یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اسلامی ممالک نے، ایران اور سعودی عرب نے خاص طور پر، اور پاکستان اور ترکی نے بھی یہ ضروری سمجھا ہے کہ ایک بار پھر مل کر بیٹھا جائے اور یہ جو صورت بن گئی ہے اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے۔ اور خوشخبری یہ ہے ناظرین کہ 12 نومبر کو ریاض میں جو اسلامی ممالک کی سربراہ کانفرنس طلب کر لی گئی ہے، جو پچھلی کانفرنس تھی OIC کی وہ وزرائے خارجہ لیول کی تھی، لیکن اب سربراہ کانفرنس طلب کی گئی ہے تاکہ جو حکمران ہیں ہم اسلامی ممالک کے وہ مل بیٹھیں اور اس حوالے سے جو بڑا فیصلہ مناسب ہو وہ کریں اور اپنے مفادات کا تحفظ کریں۔ ایک اور خطرناک خبر ناظرین یہ ہے کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہے اس نے پہلے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا ہے، پھر وہ مشرق بعید جائے گا، پھر وہ جنوبی ایشیا آئے گا، جنوبی ایشیا میں وہ انڈیا میں آ کر کچھ مذاکرات کرے گا۔ اسی دوران جو امریکی وزیر دفاع ہے وہ بھی دہلی میں پہنچ جائے گا، وہاں پر کیا گفتگو ہوگی اور اس سارے دورے کے دوران اسلامی ممالک نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ ساری تفصیل بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بابا جی داتا دربار والوں کی یہ پیش گوئی بھی بتائیں گے کہ خطے کے حالات اتنی تیزی سے مزید خراب ہونے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں اور تمام جو متحارب فریق ہیں اس وقت ان کے ساتھ اپنی پالیسی کے بارے میں از سر نو غور کرے گی، اور بہت جلد عمران خان کو اعتماد میں لے کر ان کی بذریعہ سپریم کورٹ رہائی عمل میں لائی جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام انتخابات سے پہلے ہی پاکستان میں ایک قومی حکومت یا ایک جنگی کابینہ تشکیل دے دی جائے جس میں عمران خان بھی شامل ہوں، جس میں نواز شریف بھی شامل ہوں، جس میں زرداری بھی شامل ہوں، مولانا فضل الرحمان MQM، تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوں گی۔ کون کون سی شخصیات خود شامل ہوں گی یا کن کے نمائندے شامل ہوں گے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ حالات اگر زیادہ خراب ہو گئے تو پھر یہ عام انتخابات ہیں وہ آگے چلے جائیں گے اور ایک جنگی کابینہ بنا کر ایک قومی حکومت تشکیل دے دی جائے گی، اور اس کا PTI کو اور عوام کو کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ
ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसके ये तो एक फ़ायदा है, लेकिन जो दुनिया में पूरे हालात ख़राब होंगे और खुदा न खास्ता ये जंग फैल गई तो पूरा आलम इस्लाम इसकी लपेट में आ जाएगा। तो ये बड़ी तशवीशनाक ख़बर है। इसलिए कुछ मैंने आगाज़ में आपको बताया कि कुछ तशवीशनाक ख़बरें हैं। एक खुशखबरी है कि चलें आलम इस्लाम इकट्ठा तो होने लगा है इस जंग के दोपहर, लेकिन फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, गज़ा में क्या हो रहा है, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि इमरान खान के हवाले से बाबा जी दाता दरबार वालों ने मज़ीद क्या पेशगोइयाँ की हैं। ये तमाम तफसील बयान करने से पहले नाज़रीन, हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं OIC सरबराह कॉन्फ्रेंस की। उसमें ज़राए का ये कहना है कि जो ईरान के सदर हैं वो भी खसूसी ख़िताब करेंगे, तुर्की के सदर भी खसूसी ख़िताब करेंगे, और मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, वो भी खसूसी ख़िताब करेंगे। और इन तीन शख्सियात का जो ख़िताब है वो बहुत अहम नौइयत का होगा। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 12 नवंबर को इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई है। हंगामी गैर मामूली इजलास उसका नाम दिया गया है, और पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उनकी शिरकत मुतवक्के है। कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि शायद सदर पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाएं, लेकिन इस हवाले से अभी कोई कन्फर्म इत्तला नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चूँकि ये बहुत ही अहम इजलास है, इसलिए ये फैसला किया जा सकता है कि जो सदर आरफ अलवी हैं वो इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। इस हवाले से ये सूरत हाल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। बहरहाल अनवारुल हक काकड़ की शिरकत तो यकीनी बताई जा रही है, लेकिन आप जिस तरह समझते हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब का वो प्रोफाइल नहीं है जो आसिफ अली जरदारी का है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है, या ख़ास तौर पर इमरान खान का है। अगर ये शख्सियात इस वक्त हुकूमत में होती तो पाकिस्तान की ज़्यादा भरपूर नुमाइंदगी हो सकती थी। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि जो BBC ने रिपोर्ट दी है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 2 नवंबर से 10 नवंबर तक के लिए जिस दौरे पर निकले हुए हैं, उसके पहले मरहले में वो इसराइल गए थे, तल अबीब पहुँचे। उसके बाद उन्होंने उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान का रुख किया। वहाँ से वो फ़लस्तीनी अथार्टी के जो दारुल हुकूमत रमल्ला वहाँ गए। वहाँ से वो तुर्की के दौरे पर अंकारा पहुँचे हुए हैं इस वक्त। इसके बाद उन्होंने फिर मशरक बईद चले जाना है, जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो और जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में। मशरक बईद से फारग होने के बाद वो भारत आएंगे और नई दिल्ली में उस वक़्त उन्हें ज्वाइन करेंगे जो अमेरिका के वज़ीर दिफा हैं लॉयड ऑस्टन। उस दौरान फिर 2+2 एक उनकी जो उनका सिलसिला पिछले कई अरसों से चल रहा है, अस्करी ताउन के हवाले से, स्ट्रेटजिक ताउन के हवाले से, उन्हें वो ज्वाइन करेंगे लॉयड जे ऑस्टन जो वज़ीर दिफा हैं। और फिर इनके साथ मुज़ाकरात होंगे उनके जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रामण्यम जयशंकर, और जो इंडिया के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह। यानी दो इस तरफ से हो जाएंगे, दो अमेरिका और भारत, अमेरिका के वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा, और इंडिया के वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा। इसलिए इसे 2+2 कहा जाता है। ये जो सिलसिला ये तकरीबन चौथी पाँचवीं मुलाकात है जब से इस खित्ते का, इस इलाके का चौधरी इंडिया को बनाया है अमेरिका ने, पाकिस्तान का जो फ्रंट लाइन स्टेटस है ख़त्म करने के बाद। तो उस वक़्त से ये 2+2 मुज़ाकरात जारी हैं, और इनमें बहुत बड़े पैमाने पर नाज़रीन पेशरफ्त हो चुकी है। हत्ता के जो सेटेलाइट हैं अस्करी हवाले से, सेटेलाइट सिस्टम है, और जो चीन के ख़िलाफ़ चीन के घेराव की पॉलिसी है, ये सारे मामला डिस्कस होते हैं इन 2+2 में। यानी इनमें जो एक वज़ीर ख़ारजा भी चूँकि शामिल होता है, पूरी डिप्लोमेसी भी पूरे खित्ते की, मशरक़ बईद की, जनूबी एशिया की, मशरक़ वस्ता की डिस्कस होती है, और साथ ही इस पूरे इलाके में जो अफवाज हैं दोनों ममालिक की कहाँ कहाँ तैनात हैं, और मज़ीद आगे ये सिलसिला कैसे चलाना है, जो फ़ौजी ताउन है उस पर भी बड़ी तफसील के साथ बात होती है। और ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा के साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के अजीत डोवाल, वो भी, और दूसरे बहुत से अहम हुकाम भी जो सलामती के, कौमी सलामती के अमूर से मुतालिक हैं, वो भी इनसे मुलाकातें करेंगे और बहुत तफसीली मुज़ाकरात होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, कितने हसास नौइयत के मामलात हैं। लेकिन
हमारा हाल ये है कि हमारे यहाँ अनवारुल हक काकड़ इस काम के लिए हैं और उनको आपको पता ही है कि कितना तजर्बा है। तो इसलिए शदीद ज़रूरत है कि या तो फौरी आम इंतखाबात करवा दिए जाएँ और जो पार्टी जीत कर आए उसे ज़माम इक़्तिदार सौंप दिया जाए, ताकि आलम इस्लाम के साथ इस अहम तरीन नाजुक घड़ी में हमारी भी कोई समझदार क़यादत शरीक हुआ करे हर मौके पर। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान में एक जंगी काबीना तश्कील देकर एक फौरी कौमी हुकूमत बना दी जाए और आम इंतखाबात को साल 6 माह के लिए या 2 साल के लिए कुछ डिले कर दिया जाए। इन दोनों ऑप्शन पर बड़ा गौर तफसील के साथ गौर कर रही है हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट। ज़राए का ऐसा कहना है, ये खबर हम आपको ब्रेक कर रहे हैं, कि जंगी काबीना की तश्कील और कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से भी सलाह मशवरे तेज़ हो गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको पता होगा कि नवाज शरीफ ने भी कुछ इशारे दिए हैं, लेकिन इमरान खान के चूँकि सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब तक इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता और संजीदगी और खलूस नहीं दिखाया जाता इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इमरान खान का कहना है कि वो पूरा ताउन नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक गनीमत है कि चीन और सऊदी अरब की तरफ से जो दोस्ताना दबाव डाला गया था इमरान खान पर भी और आसम मुनीर पर भी, जो आर्मी चीफ है हमारे, तो उसके बाद से कुछ बर्फ़ पिघली है। और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से अगले चंद हफ्तों के दौरान कुछ पेशरफ्त हो सकती है। ज़राए तो हो सकती है कह रहे हैं, यानी इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी दाता दरबार वालों का ये कहना है कि पेशरफ्त हो चुकी है और आपको उसके समरात अब नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और जो पाकिस्तान से नहीं, चूँकि पूरा आलम इस्लाम इस वक्त दाव पर लगा हुआ है, इसलिए इमरान खान ने अपने बहुत से जो स्टैंड हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। दिल का बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उन्होंने कहा है कि जो उम्मत पर इस वक्त कड़ा वक़्त आया हुआ है, उसकी वजह से इमरान खान ने ये कहा है कि मुझे ना हुकूमत चाहिए, अगर आप मुझे इलेक्शन से भी निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, लेकिन इस वक्त एक जंगी काबीना तश्कील देकर और कौमी हुकूमत बनाकर सारा कुछ हम भूल कर एक दूसरे के साथ जो हमारी मुखालफतें हैं, हमें आलम इस्लाम के लिए और जो सऊदी अरब और ईरान और तुर्की जो कोशिशें कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान चूँकि एक एटमी ताकत है नाज़रीन, और हमारी फ़ौज जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हमारी जो एजेंसी है वो सबसे पावरफुल है, हमें यकमुश्त और यकजान होकर आलम इस्लाम के साथ इस वक्त नाजुक घड़ी में खड़े होना चाहिए। और ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा बार बार 2+2 मुज़ाकरात कर रहे हैं भारत के साथ, और उसका नया दौर अब 9-10 तारीख को होने जा रहा है इंडिया में। तो ये सारे मामला ऐसे हैं कि पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम आपस में ही लड़ते रहें। ये सूरत हाल देखकर इमरान खान ने बहुत लचक दिखाई है, बाबा जी का ऐसा कहना है, लेकिन ये चीज़ अभी ज़ाहिर नहीं की जा रही। इसलिए जो पुरानी पॉलिसी है वही चल रही है, ताकि जो हमारे दुश्मन हैं वो बर वक्त हमें हमारे इस मामला को समझकर इसमें को रखना ना डाल दें। इसलिए बाबा जी का ये कहना है कि आप लोग इत्मीनान रखें, आपको जल्द ही बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। नाज़रीन, BBC ने रिपोर्ट ये दी है कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जब मशरिक़ वस्ता के दौरे पर आए हैं, तो कोई इस्लामी मुल्क उनके साथ सीधे मुँह से बात नहीं कर रहा। BBC ने यहाँ तक रिपोर्ट कर दिया है नाज़रीन कि अमरीका से आलम इस्लाम इतना नाराज़ है कि रियाज़ में, अम्मान में और रमल्ला में, बगदाद में, अनकरा में, कहीं भी किसी इस्लामी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा ने, किसी इस्लामी हुकूमत के सरबराह हुकूमत ने उनके साथ सीधे मुंह बात नहीं की और सख्त नाराज़गी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि पहले आप इसराइल को समझाएं कि वो बंदे का पुत्र बने, वो अपना फौरी जंग बंदी करे, फिर हम देखेंगे हमें क्या करना। इतना जुल्म उसने गज़ा में ढाया है नाज़रीन, आप सोच भी नहीं सकते कि जिन लोगों तक की रसाई है ट्विटर तक और ऐसे सोशल मीडिया तक जहाँ पर वो ख़बरें और वीडियोज़ आ रही हैं, वो तो देखी नहीं जा रही। इतना जुल्म किया है, तकरीबन 10-15 लाख लोग मुहाजिर बन गए हैं, अरबों भी नहीं, खरबों डॉलर के जो अमारात हैं वो तबाह कर दी गई हैं। 10,000 जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 5,000 मासूम बच्चे हैं, 3,000 ख़वातीन हैं और 35,000
फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हैं, हस्पताल तबाह हो चुके हैं, इतना जुल्म हो रहा है कि क़यामत बरपा है। और आलम इस्लाम इस पर शदीद दुखी है कि अमेरिका डट कर न सिर्फ इसराइल के साथ खड़ा है, बल्कि जिस तरह भी हमने आपको बताया कि वहाँ पर बाकायदा सलीबी जंगों का बुखार पैदा करके वहाँ से किराए के फ़ौजी जमा किए जा रहे हैं और उन्हें इसराइल भेजा जा रहा है। जिस तरह आपको याद होगा कि जिहाद अफ़गानिस्तान के दौरान पूरे आलम इस्लाम से रज़ाकार और जांबाज और जंगजू भर्ती होकर आए थे और उन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। अब बिल्कुल उसी अंदाज में पूरे यूरोप से, अमेरिका से ये जो सलीबी जंगजू हैं वो आ रहे हैं और जंग की तैयारी हो रही है। तो खुदा का खौफ करें, आप पाकिस्तानियों को भी मुत्तहिद हो जाना चाहिए। इख्तलाफात अब आप सारे पस से पुश डाल दें, ये हमारी अपील है इमरान खान से, आसफ़ अली ज़रदारी से, नवाज शरीफ से, जनरल आसिम मुनीर से और वो जो और भी MQM मौलाना फजलुर रहमान, जितनी भी सियासी जमातें हैं, कि भाई आप इस वक्त देखें कि पूरी उम्मत पर कैसा कड़ा वक्त है, कैसी आजमाइश की घड़ी है। तो खुदारा आप लोग इकट्ठे हों और इस मामले के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा पैदा करें। आप लोग इकट्ठे होंगे तो कौम उठेगी। कौम भी सोई हुई है, ख्वाब गफलत में गिरफ्तार है, ना उसे इस बात की परवाह है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ना उसे इस बात की परवाह है कि पूरे खित्ते में या आलम इस्लाम के साथ क्या हो रहा है। चंद रोज़ जुलूस वगैरह निकले हैं, लेकिन इस वक्त ये जुलूसों से मसला हल होने वाला नहीं है। ये तो हुकूमती लेवल पर कोई काम होंगे, सिर्फ एक मुल्क के या एक अकेले पाकिस्तान के करने का भी काम नहीं। इतनी बड़ी खौफनाक अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा भागा फिर रहा है नाज़रीन। 2 नवंबर को वो निकला अपने घर से और 10 नवंबर तक वो इस पूरे एशिया में घूमता रहेगा। और हमारा क्या हाल है कि हमारा ना कुछ चीन के साथ, ना रूस के साथ और ना जो बाकी इस्लामी ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के साथ, तो उल्टा हमारे हालात ख़राब हो चुके हैं कि जो पनाह गज़ीनों को बड़ी अफरा तफरी में हमने उन्हें बाहर वापस भेजवाया है। तो इन सारे मामलात को देखने की ज़रूरत है और हमें उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए हम दरख्वास्त गुजार हैं इस्टेब्लिशमेंट से, सियासी जमातों से, ख़ास तौर पर इमरान खान, नवाज शरीफ, आसफ़ ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दूसरी कुव्वतों से कि खुदारा होश के नाखुन लें, क्योंकि एक एशिया में बहुत बड़ी जंग की तैयारियां हो रही हैं। और इस पर फिर हम अभी अगली वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे कि ये जंग कैसे होगी। और ये जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं ब्लिंकन, एक तो उन्होंने इस खित्ते का दौरा किया है जहाँ पर ये जंग लगी हुई है, लेकिन उन्होंने फिर जिन मुल्कों का इंतखाब किया है नाज़रीन वो बहुत अहम है। जो सारे जो मुल्क हैं जिनमें इसराइल है, उर्दन है, फ़लस्तीनी अथार्टी है, इराक़ है, तुर्की है, सऊदी अरब है, ये इस्लामी ममालिक रवायती तौर पर अमेरिका के इत्तेहादी हैं। और जो इसराइल है, जापान है और जनूबी कोरिया, जहाँ वो जाएंगे, वो जहाँ इसराइल तो जा चुके हैं, बाकी वो जाएंगे जापान और जनूबी कोरिया। इसराइल, जापान और जनूबी कोरिया ये 5+ जो नॉन नेटो मेंबर हैं, समझे कि उनका लेवल नेटो मेंबरशिप मेंबर का ही है, लेकिन उन्हें नॉन नेटो इसलिए कहते हैं कि जो नेटो बेसिकली शुमाली बहरे ओकेनूस की एक तंजीम है अमेरिका की छतरी तले। तो इन तीनों के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और फिर जो चौथा नया नॉन नेटो अलाई बना है और 5+ को अब 6+ कहा जा रहा है, जो एशिया में नेटो का एक विंग है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका ये सारा दौरा अस्करी हवाले से है, जंगी हवाले से है। 3rd वर्ल्ड वार के ख़तरात के पेश नज़र ये दौरा है, जो एक समझ लें कि मिनी 3rd वर्ल्ड वार तो इस वक्त शुरू है कि यूक्रेन में भी जंग जारी है और इसराइल में भी जंग जारी है और किसी भी वक्त इसराइल वाली जंग फैल सकती है। तो इन ख़तरात की वजह से वो आप देख रहे हैं कि वो लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और हम सोए हुए हैं, हमें कुछ परवाह नहीं है, हम आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, लेकिन हम ये आपसे वादा करते हैं कि इस हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी उनसे आपको बाखबर करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारा मीडिया है वो ये नहीं बता रहा कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा क्या है और जो इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस है वो किस मकसद के लिए बुलाई गई है और वो हंगामी क्यों है और वो गैर मामूली क्यों है। और इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो पेशगोई की है बाबा जी ने, उसकी भी हम मज़ीद तफसील अगली वीडियो में बयान करेंगे, क्योंकि ये खासी लंबी हो गई है और हमारे नाज़रीन अब ये कहने लग गए हैं कि जनाब आप जो 30-40 मिनट वाली वीडियो ना बनाया करें, बराए करम इसे 10-15 मिनट तक ही महदूद रखा करें। उनकी ख्वाहिश के एहतराम में इसको हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए मौजू के साथ। और नया मौजू हमने क्या देना है, मौजू यही होगा नाज़रीन, इसकी जो हमारे पास मज़ीद बहुत सी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से हम ये गुजारिश करेंगे कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत
اہم ترین ویڈیوز اب آنے والے دنوں میں آئیں گی، کیونکہ حالات بہت سنگین اور نازک ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔